Thank you. Dr. Sushmita Bala, Professor Amrish Saxena, Dr. Chiller, Professor Bell, esteemed members of the faculty, and my dear students, a very good afternoon to you. It's indeed a great pleasure to be at the Delhi Metropolitan Institution here. It's my first visit, and I must say that I'm impressed. I mean, that you have so many students listening patiently, silently, with rapt attention. I see great journalists in the making here. And my compliments to the team, to the faculty for having such brilliant students. Usually I begin wherever I go, I make it a point to talk about 5 minutes about my institution, the Indian Institute of Mass Communication. But your students have preempted me by taking an interview on IMC. So I do not want to repeat what I have already stated, so that I hope that you will get to see. So I'll straight come to the point. And my compliments again to you for introducing a lecture series named after one of the finest journalists this country has seen. A journalist who stood up to emergency. A journalist whose recommendations have led to major changes in the media scenario in the country, and who has contributed immensely to media academia by way of his books and his writings. And that you are taking such journalists as role models and bringing in a lot of people from the industry to interact with the students is something admirable, and my compliments to all of you. Friends, I always say that my blood group is B positive. So I am by and large a very positive person. I have no option. My blood group says it's B positive. It reminds me. So in media generally you see a lot of negativity, a lot of skepticism. I'm okay with skepticism. If you are a media person, you've got to be skeptic. You cannot be a blind follower, like the followers of the Baba. Right? You got to have that, not only that curiosity, but you've got to have that questioning mind. If you are happy with the situation, then you cannot be a journalist. A journalism student can be given the skills at institutions like DME. But I believe that journalists are born. You cannot be a great journalist, a successful journalist, if you are not sensitive. You got to be sensitive. You should not be happy with the status quo. If after 70 years of independence, if people are still sleeping on the streets, if children are begging, if our girls have to drop out of schools because you don't have toilets in schools, if still brides are burned because they do not give dowry, I think you should not be saying that everything is good. You should have a questioning mind why it is so. If you don't have that questioning mind, I'm sorry to say that you cannot be a great journalist. You have to question. But at the same time, it is also important that you don't see everything in a negative light. You have to look at things from both ends. What you see on your front is not necessarily the truth. Everything has positive and negative aspects. One person, one aspect, one issue cannot be totally negative or totally positive. A journalist is somebody who looks at both sides, who looks at the story behind the story. That is what a journalist should be. Not just what he sees apparently.
So it's important that you have to look at that aspect also. Indian journalism is going through and I must say that in India journalism began with a missionary zeal. In fact, our journalism we can trace to the independence struggle. Some of the biggest or some of the tallest stalwarts of our freedom struggle were journalists. Mahatma Gandhi had his own paper, Lokmanya Tilak had his own paper, Baba Saheb Ambedkar had his own paper. And it was through these newspapers and magazines that they created an awareness among a largely illiterate population. There was an intellectual discourse not just in India but also in the West on India's crusade for freedom. And that we can, so it is with that spirit that a lot of people got into journalism. Journalism was never seen purely as a profession. Like other profession, I have no issues with any other profession. But every profession has its own, hallmarks. The journalism profession always had that service aspect. That is why only the journalistic profession has got that a reputation of being the fourth estate. So the first estate being the executive, the second being the legislature, the third being judiciary, and the fourth being both estate, being media. It is because it has a responsibility beyond, say, profession of a doctor, profession of a chartered accountant. Beyond that, there is a role, and that it's a big stakeholder in safeguarding the democracy in this country. It has a big role. It is journalism, and I must say that Indian media, despite all shortcomings, I believe that is one of the freest media in the world. It has highlighted, exposed the biggest corruption scams. It has exposed how brute power has been misused. Whether it is issues related to women, issues related to farmers, issues related to the marginalized sections of the society, the media has always highlighted them. And that is why what media says is believed to a great extent by the people. I still remember those days when people would fight with bus conductors and shopkeepers कि तुम इतना पैसे कैसे ले सकते हो, ये तुम कैसे बात कर सकते हो, क्योंकि मीडिया में तो कुछ और लिखा था. That was the credibility of the press. कि अगर प्रेस में कुछ लिखा है तो वो वेद वाक्य है. It's the biblical truth that what has come in the press is the final word. That is the kind of trust people had, still have. But yes, over the years, as the Professor Bell here mentioned, there has been an erosion. But that erosion has been there in every aspect of our national life. We had the greatest politicians in this country during the freedom struggle. And today, what is the kind of politicians we have? We had some of the finest doctors in the world. Today also we have all kinds of doctors. I can talk about all professions where there has been a decline. And somewhere, ये कोई पत्रकार कोई आसमान से तो टपका नहीं है, वो भी इसी समाज से निकला है. और इस समाज में जो बुराइयां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इस पेशे में भी प्रतिबिंबित होता है. तो मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं. But by and large, media persons per se have remained committed to the larger cause of the society. And please mind my words, I am saying media persons. I am not using the word media. Because there has been a great change in media. मीडिया का पहला इमेज आप देखिए, पुराने फिल्में आप देखेंगे तो पत्रकार यानी कि एक कुर्ता पजामा, कोल्हापुरी चप्पल, हाँ चश्मा पहना हुआ है, कोई दाढ़ी भी बढ़ाया हुआ है, झोला भी साथ में है, झोला छाप, अपना ही प्रेस चलाता है.
वो था एक, but gradually वो phase changed, and what you saw was that media came into the hands of a lot of businessmen who started running, and for them, over the years, we also had businessmen like K.K. Birla, who started Hindustan Times as part of the freedom struggle. But then a new kind of, like in every profession, a new breed of entrepreneurs came for whom media was another profit-making venture. In fact, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग साबुन बेचते हैं, मैं अखबार बेचता हूँ. तो for them, media became another commodity. But they forgot that media cannot be sabun. Media has a bigger role in a country like India. In a developing country like India, where there are so many development challenges, and they tried to make it sabun. And that is where a lot of corruption came in, to which the professor here referred. इंडिविजुअल पत्रकारों में भी कमी रही है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मैं खुद 3 दशक से देख रहा हूं, लेकिन उन्होंने हमेशा एक संघर्ष का जीवन उनका रहा है. I remember during my initial days in Delhi as a journalist, I found that people were not willing to give you house on rent. कि वो मकान नहीं देंगे पत्रकार को, पता नहीं खाली करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं किराया दे पाएगा या नहीं दे पाएगा. और वो तो दूसरी बात है. पहली बात तो खैर मकान नहीं मिलेगा, और दूसरी बात है कि कोई भी अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार नहीं है पत्रकार से. अरे तू क्या खिलाएगा, खुद तो पहले खा ले. ये गुर्बत के हालात थे कि पीपल वुड नॉट गिव. भाई व्हाट काइंड ऑफ ए लाइफ आर यू लीडिंग? आई डोंट वांट माय डॉटर टू बी अनकंफर्टेबल. एंड एट दैट टाइम you did not have many women journalists. You are today, in fact, if you look at particularly television, it is the women who dominate, and that's a great change. But those were the days when the profession of journalism was looked down as something unpredictable. You are not sure about the career. You are not sure about comforts in life. It is a life of struggle, and it is. Only thing is that now the terms and conditions have changed. Today, thanks to the arrival of television and the web media, today it's a paying profession. I'm not saying it is at par with, say, an MBA or an MCA or a software job. I won't say that. But the kind of satisfaction it gives you is something, because I see that every year, year after year. I've been at the Indian Institute of Mass Communication for the last 2 decades as a visiting member, and now I'm heading that institution. Every year in the interview board, I see that a majority of the students come from the management stream, from the science stream, from the commerce stream, from computers. And they tell me that we got into the earlier course because our parents wanted us. But now we have realized that we are not cut out for that. Under parental pressure we came to this profession, but I want to be a journalist. That is the kind of students I see. Because then they realize that no, you are not made for, a technical course or an engineering course. You are cut out for journalism. Journalism has become glamorous also. Everybody, today the whole country watches you. You also want to be seen, you want to be heard. There's a lot of glamour also. And the feeling of being, with the powers that be. You are on friendly terms with the most powerful people in the country. The celebrities whom you just get to see on screen. You are interacting with them on a daily basis. That is a kick that it gives. But for me as a journalist, the biggest thing is that I am able to bring about some change. That I can, through my writing, through my documentation, I can highlight issues that will change
the life for better for some marginalized individual. That gives you a lot of good sleep, which nothing else gives. That I have been able to change the life of this person because I highlighted his problem. So that concern for the last man, to the marginalized, to the person, the deprived, because you become a voice of the voiceless. That gives you a lot of satisfaction, and that no money can compensate that satisfaction. Because ultimately you want peace. And you see a lot of people who are very successful, but who are running after so many babas for peace. Because ultimately that is what you want. And this profession gives you that peace, that satisfaction of doing something not just for yourself, but also for the people at large. There are, I must say that aberrations are there. They were there right from beginning. I remember when I started journalism, there used to be a menace called Lifafa journalism. That meant that along with the press release, the organizers of the event will give you a small lifafa. That will have some 100 rupees, 500 rupees. That is it. Gradually it changed from lifafa. Today, what was referred to here as paid news. But is that paid news being taken by the journalist? No. It is due to the corporatization of the media. That is one of the biggest challenges I would like to highlight here. Today you have businessmen who are running television channels and newspapers which are out there to make money. And you go and talk to corporates, filmwalas, politicians and say that, look, we will give you positive coverage in lieu of payment. Now that's no more with the journalist. It is the owners. It is the marketing people who are doing this deal now. But yes, in journalism also, gradually, like in any other profession, there has been a decline, which is a matter of worry. ये चिंता का विषय है कि पत्रकार में पत्र पीछे हो गया, कार आगे आ गया है. पत्रकार, हम लोग कार को उतना महत्व नहीं देते थे. आज सबको चाहिए, a lavish lifestyle. But then you have to think about it. At what cost? Do you want to be known for your writings, your views, or do you want to be known for your money? If you want to be known for your money, then this is not a profession for you. I have in front of my house, there is a palatial house. And he has several big cars with him. I travel in my small car. He has a big car. I once tried to inquire what is this big man all about. I was told that he has several chakkis in the locality. But I know that my worth as a journalist. I will never think of competing with a chakkiwala. That is for you to decide whether you want to be a rich man running a chakki or you want to lead a comfortable, reasonably comfortable life as a journalist. That is where you have to take a call. If your objective is just to make money, then go for any other profession. That is what I always advise youngsters. Because then you tend to make compromises. When you are making compromises, you are not making compromises, but you are compromising with the interests of a large number of poor people. I will tell you a small instance which I faced. At the Indian Institute of Mass Communication, I had one student. And like a lot of students, he came from a typical lower middle class family with a lot of responsibilities. He passed out. He got a job in one big newspaper. And I remember, like many other students of mine who call me up whenever they are in trouble to seek guidance. So he said that, sir, I have done this big expose on one of the big real estate
mafia who has duped a lot of investors, but my editor is not carrying the story. I said कि क्या हुआ, आप सारा दिन तो लिखते हो, वो थोड़ी छपेगा, बर्दाश्त कर लो, कुछ दिन बाद जो है वो छप जाएगा, नहीं छपेगा तो दूसरे स्टोरीज करो. तो he kept waiting and then he called me up again. said कि सर मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का. मैंने कहा क्या हुआ? कहते कि सर इतना बड़ा मैंने फाइल लेके आया था और उसने तो वो छापा ही नहीं. अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो बॉस हैं उनके पास एक नई गाड़ी आई है. तो मैंने कहा नई गाड़ी आने में क्या हुआ? सर मुझे लगता है कि मेरा रिपोर्ट उसने बेच दी है. सो आई सेड कि देखो अभी क्रांति करने का मत सोचो, तुम्हारे घर में कौन कौन है. एंड टिपिकल मिडिल क्लास स्टोरी लाइक ऑल ऑफ यू एंड आई हैव दैट पापा रिटायर हो गए हैं, मम्मी जॉब नहीं करती है, बहन की शादी करानी है, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है. तो मैंने कहा फिर अभी क्रांति का मत सोच, अभी नौकरी करते हैं, अभी इंतजार कर, मौका आएगा. I remember after couple of few months I met one of his classmates. I said कि आजकल वो हीरो का क्या हाल है, आजकल फोन वोन नहीं आता है उसका. He said कि सर उसने तो जॉब छोड़ दी. मैंने कहा कि जॉब छोड़ दिया? वैसे तो वो कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है तो मुझसे पूछ के करता है. इतना बड़ा फैसला लिया, इतने बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहा है, उसने छोड़ दिया, एक बार फोन तक नहीं किया. मेरे सर पता नहीं, उसने तो छोड़ दिया और आजकल वो आगे पढ़ाई कर रहा है, कहीं PhD कर रहा है. मैंने कहा नंबर मिला. He called him up and gave the phone to me. मैंने कहा कि क्या हुआ, जॉब क्यों छोड़ा? कहते हैं कि सर मैंने वहां जॉब कंटिन्यू किया, आपने उस दिन मना कर दिया था तो मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन इस बार मेरे बॉस ने कहा कि एक नया फीचर लिखो और जिसका मैंने एक्सपोज किया था उसकी तारीफ करते हुए एक फीचर तैयार करो. सर मेरा कलम नहीं मानेगा, ये इतना बड़ा चोर है, इसको इसके तारीफ में मैं लिख नहीं पाऊंगा. तो मैंने कहा तुम मुझसे फोन क्यों नहीं किया? कहते सर आपको अगर फोन करूंगा तो आप फिर मेरे पिताजी की, मेरे माताजी की, मेरे बहन और भाई का दुहाई देंगे और फिर मुझे नौकरी से छोड़ने से आप मना करेंगे. ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, मैं इसके आगे समझौता नहीं करूंगा. That is where you have to take a decision. वो कोई मीडिया स्कूल प्रोफेसर सुष्मिता बाला, प्रोफेसर अमरीश सक्सेना या कोई भी आपको ये चीजें नहीं सिखा सकता है. कहां आपको अपना पर्सनल कॉन्शियंस कब तक आपको परमिट करता है समझौता करने के लिए. क्योंकि आप याद रखिए इस बात को, वही जिस दिन ये हमें एहसास हो जाएगा, it will change the discourse of the media. I will tell you, when this paid news was at its peak, we had taken a delegation to Punjab and I had met the then Chief Minister Prakash Singh Badal. So Badal Saab, during the discussions, he told us, कहा कि देखो जी ये पेड न्यूज में क्या है, कुछ पत्रकार आते हैं, कोई 5,000 लेते हैं, कोई 10,000 मांगते हैं, कोई 15, कोई 50. तो अब क्या करें, मजबूरी है, चुनाव के टाइम में हमें देना पड़ता है, हम दे देते हैं. Then he cited a line. I think that if every journalist remembers that, he will never allow a crooked politician to ever say like that. He said कि the next line, देखो जी ऐसा है, पैसे तो हम दे देते हैं, लेकिन उस दिन हम जर्नलिस्ट की औकात पता कर लेते हैं कि इसकी कीमत 5,000 है, ये 5,000 में बिक जाएगा. Do you want to be sold? No. So never allow any crook to put a price tag on it. Never. कोई भी पॉलिटिशियन फिक्स करेगा आपका रेट कि इसको मैं 5,000 में खरीद लूंगा. I think that is the day when you will change the face of Indian journalism. And believe me, there are a lot of good people. Maybe at the beginning of your career you may have to make some small compromises. I am not saying that. But you are not going to be at the beginning for a long time.
The day you occupy those chairs, keep these ideals alive, keep these ethics alive. Some people say, अरे आप जर्नलिज्म स्कूल में कुछ और पढ़ाते हैं, लेकिन असली जिंदगी में तो कुछ और है, प्रैक्टिकल लाइफ तो कुछ और है। मैं भी मानता हूं कि जो हम मीडिया स्कूल में, तो हम आपको पेड न्यूज करने के लिए तो नहीं सिखाएंगे ना, लेकिन आप उसको, वो जो आपने इधर सीखा है उसको जिंदा रखिए अपने अंदर और कहिए कि जिस दिन मैं कुर्सी में बैठूंगा, जब मैं चीफ रिपोर्टर बनूंगा, मैं ब्यूरो चीफ बनूंगा, मैं एडिटर बनूंगा, तब मैं उसको लागू करूंगा। दैट शुड बी द स्पिरिट। ये नहीं कि मैंने जो सीखा वो गलत सीखा, नहीं, आपको ठीक ही सिखाया जाता है, लेकिन हो सकता है दिक्कतें हो, लेकिन उसमें समझौता उस वक्त शायद किसी मजबूरी से करना भी पड़ सकता है। कभी कभी आप जिस तरह स्टोरी करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ दबाव आपके ऊपर आ जाए, लेकिन दैट शुड नॉट डिटर योर स्पिरिट, दैट शुड नॉट मेक यू कॉम्प्रोमाइज, दैट विल चेंज द फेस ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। Challenges are there. There is no field in which there are no challenges. There are. Another big challenge I see is that there is a lot of negativity. And this negativity is कि हर चीज को आप एक नकारात्मक तरीके से देखो। अरे सब बुरा हो रहा है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का भला हो ही नहीं सकता। I somehow don't agree with that. ये भला करने वाला कोई और नहीं है, मैं और आप ही हैं। Unless you change, how will the society change? You have to be the change. इसलिए you cannot say that oh society is like that. You are also part of the society. Have you stopped throwing the banana skin on the streets? Have you stopped spitting? That is what you should decide. Why are you looking at somebody else is doing that? I will tell you a small instance. मैं अभी 2 साल पहले, आपने सुना होगा दीव। दीव is a small island of the Gujarat thing. It's a union territory. मैं वहाँ घूमने गया था, तो वहाँ एक पुर्तगाली किला है। वहाँ से बहुत गर्मी थी, मैं निकल के आया तो नीचे उतरा तो एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। अब मैं उस आइसक्रीम वाले से कहा कि भाई आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम दिया, लेकिन आइसक्रीम देते हुए उसने क्या किया कि वो रैपर जो है उसको निकाल दिया। रैपर निकाल के उसने अपने उसमें डस्टबिन में फेंका और मुझे उसने रैपर दी, तो मतलब आइसक्रीम दिया। मैंने आइसक्रीम ले लिया। हम दिल्ली वालों की आदत नहीं है ना, हम तो रैपर के साथ ही लेते हैं। तो मुझे लगा कि अरे मेरा ड्राइवर भी है, वो पूरा गुजरात से मुझे लेकर आया है, वो भी बेचारा गर्मी में खड़ा हुआ है। मैंने कहा कि एक और आइसक्रीम दे दे। उसने फिर आइसक्रीम निकाला, फिर रैपर निकाला। मैंने कहा कि पैसे पूरा नहीं दे रहा हूँ क्या? कह कि क्यों साहब? मैंने कहा जब पैसे पूरा दे रहा हूँ तो आइसक्रीम भी पूरा देना, रैपर क्यों अपने पास रखना? ये सब लेना है तो लो, रैपर तो नहीं। मैंने कहा बदतमीजी है, पैसे दे रहा हूँ मैं, रैपर क्यों नहीं देगा? कहते कि रैपर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप जैसे टूरिस्ट कहीं भी रैपर फेंक देते हैं, इससे मेरा दीप गंदा होता है, और अगर मेरा दीप गंदा होता है तो मेरा पर्यटन खराब हो जाएगा, और मेरा पर्यटन खराब होगा तो मेरे पेट में लात आप मारेंगे। ये मैं आपको करने नहीं दूंगा। आइसक्रीम वाले ने मेरी आंखें खोल दी। दैट इज द सेंस ऑफ ओनरशिप। आज मैं देखता हूं कई बुद्धिजीवी जो है वो रेलवे स्टेशन में खड़े होते हैं, कहीं कूड़ा देखा तो बोलते हैं अरे देखो मोदी ने क्या किया, अरे प्राइम मिनिस्टर आके रेलवे स्टेशन में कूड़ा साफ करेगा। क्या बात कर रहे हो? आपने क्या किया? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरे मोहल्ले में सफाई। आज आधा से ज्यादा जापानीज म्युनिसिपैलिटीज गोरखपुर से लेकर आपके दिल्ली शहर में डेंगू, इन सबके लिए गंदगी जिम्मेदार है। What are you doing about it? What am I doing about it? Have you ever asked that question? No, we don't. We always put the blame on the government's doorsteps. We expect the government to do everything. Are we doing? Are we creating awareness? At least let us create awareness. And that is what we are supposed to be doing. Information, creating awareness, that is our responsibility. हम सिर्फ sensationalize ही करेंगे क्या हर खबर को? I think that in a developing country like India, media has this challenge of
highlighting the problems of the people and acting as a bridge between the people and the government. That is what it should be doing. लेकिन उसके बजाय हम हमेशा एक नेगेटिव मोड में रखे हर चीज को हम नेगेटिविटी की बात करते हैं। गांधी जी के 3 बंदर के बारे में कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। मीडिया के लाइन में ऐसा नहीं होता है। मीडिया में अक्सर हम यही कहते हैं कि बुरा ही देखो, बुरा ही बोलो, बुरा ही सुनो। लेकिन मैं कहता हूं एक छोटा सा अमेंडमेंट कर दो ना। बुरा देखो, बुरा देखे बगैर हम उसको उजागर नहीं कर सकते। बुरा सुने बगैर हम जो है बुराई के बारे में लिख नहीं सकते, बुरा बोले बगैर। लेकिन मैं तो इतना ही एक छोटा सा अमेंडमेंट चाहता हूं उसमें, अच्छा भी देखो, अच्छा भी सुनो और अच्छा भी बोलो, है ना। और ये अगर आ गया तो बहुत परिवर्तन आ जाएगा। आज लोग जब अखबार पढ़ते हैं सुबह या टीवी देखते हैं तो मूड खराब हो जाता है। सवेरे सवेरे लोग टीवी देखना छोड़ दिया है। कई लोग कहते हैं कि क्या होता है, बस वही घटनाएं। अच्छी बात भी तो हो रही है क्या? 125 करोड़ के देश में सिर्फ बुरी घटनाएं ही हो रही है क्या? बुरा हो रही है, उसको उजागर भी करने की जरूरत है। अगर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो उसको जरूर उजागर कीजिए, दुनिया के सामने लाइए। लेकिन जहां लोग अपना सब कुछ छोड़कर विदेशों में लाखों करोड़ों का पेचेक को छोड़कर हिंदुस्तान में गांव में आके काम कर रहे हैं, क्या हम उनकी कहानियां ना दिखाएं क्या? अच्छी चीजें नहीं दिखाएं क्या? अभी अमरीश जी ने मुझे बताया, अभी यहाँ बताया आपको, वो डीडी में मैंने जब छोटे कार्यकाल के लिए था, मैंने एक कार्यक्रम, आप में से जो लोग दूरदर्शन देखते हैं, एक मैंने प्रोग्राम शुरू किया गुड न्यूज इंडिया। आधे घंटे का शो है, बहुत पॉपुलर हो गया है। उसका देखा देखिए अब हर चैनल में शुरू हो गया है। यानी कि पूरे देश से जो अच्छे समाचार है उसको मैं इकट्ठा करता हूं और उसको मैं आधे घंटे के कैप्सूल में दिखाता हूं, ताकि लोगों को यह भरोसा हो कि हाँ अच्छी चीज भी हो रही है। आज समाज में एक विश्वासहीनता पैदा हो गई है, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। सास बहू सीरियल्स भी आ गए, सारा कुछ चल रहा है। तो पति पत्नी पर शक कर रहा है, बाप बेटे पर शक कर रहा है, बेटा बाप पर शक कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे शक कर रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय पर, और सब एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते हैं ऑल द टाइम। दिन भर एक ही काम है, साजिश रचना। ऐसा तो समाज नहीं है। मेरे घर में तो मैंने ऐसा देखा नहीं। आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू आपके घरों में भी ऐसा नहीं है। तो फिर ये कौन सा समाज दिखा रहे हैं? तो ये जो एक नेगेटिविटी पूरे समाज में हो रहा है, हर चीज को सिर्फ क्राइम सीरियल देख के अब सब पर शक होता है। जैसे ड्राइवर पर सबसे ज्यादा भरोसा था, गाड़ी में बैठते हुए ये मेरा मर्डर न कर दे, किसी शक के साथ गाड़ी में बैठा। ये कौन सा सोच हमारे अंदर घुस रहा है? मुझे लगता है कि हमको इस पर सोचने की जरूरत है। ये चैलेंज है कि हम इस मीडिया डिस्कोर्स को कैसे बदलें। हम कहते हैं कि जिसका यहां फिर जिक्र हुआ था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका अक्सर जिक्र होता है। मेरे पड़ोस में एक संस्था है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहां ज्यादा जिक्र होता है इसका। लेकिन मैं भी मानता हूं फ्रीडम की जरूरत है, हमें, वी आर इन ए फ्री कंट्री, वी आर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन मीडिया को वही अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो सभी साधारण नागरिकों को मिला हुआ है, वही मीडिया को मिला हुआ है। अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अंडर द फर्स्ट अमेंडमेंट यू हैव a specific provision of free press, in the Indian constitution there are no special provisions for the media. We derive strength from the same provision of freedom of speech and expression applicable to every citizen of this country. And that freedom comes with Article 19(1)(b) which talks about reasonable restrictions. And that restrictions include that my freedom should not be at the cost of the sovereignty of the country, of brotherhood between different communities. It should not be at the cost of indecency and vulgarity. There are reasonable restrictions at the cost of friendly relations with foreign countries, internal security of the country. तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों में फर्क हमें जानने की जरूरत है। The difference between freedom and license.
Freedom is not license. Freedom comes with a lot of responsibilities. Freedom is not unrestricted. Freedom is not unrestrained. As they say that my freedom ends where the other person's nose begins. ये हमें समझ में आना चाहिए. आजादी मतलब कुछ भी करने की आजादी नहीं है. आपने देखा एक ने आजादी ली, वो 20 साल के लिए अंदर गया. कुछ भी करने की आजादी ऐसा नहीं. हमें जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं. जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि आज आपको बहुत इश्तिहार दिखते हैं, विज्ञापन दिखते हैं, लेकिन उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं. देखिए, एक 35 या 40 रुपए का एक न्यूज़पेपर, आप जानते हैं कि एक सिंगल न्यूज़पेपर पब्लिश प्रिंट करने का प्लस आप तक पहुंचने का कॉस्ट है 35 to 40 रुपीस. बट आप कितना पैसा देते हैं उसके लिए? 4 रुपए या 5 रुपए मैक्सिमम. कैन यू इमेजिन, दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो एट 1/4 तो छोड़िए, पता नहीं कितना काफी कम रेट में कोई प्रोडक्शन कॉस्ट से फार बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट कोई प्रोडक्ट अगर बिकता है तो वो न्यूज़पेपर है. यानी आपका छपाई का कॉस्ट है आपका 35-40 रुपए, फिर आपका पूरा सर्कुलेशन इधर उधर घुमा के वो जब वेंडर तक पहुंचता है, ट्रक में आके, ट्रेन में लाद के, फ्लाइट में आके, वो आपका वेंडर तक पहुंचते पहुंचते वो 40-45 रुपए का आता है. आप खरीदते हैं उसको 5 रुपए. वो पैसा कहां से लाएगा? विज्ञापन से ही लाएगा. वो अगर एडवर्टाइज नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? जिस दिन मैं और आप 10-15 रुपए एक पेपर के लिए, जैसे पश्चिम में होता है, तैयार हो जाएंगे तो अपने आप विज्ञापन पर निर्भरता कम हो जाएगी. और विज्ञापन पर निर्भरता कम होगी तो प्रेस ज्यादा आजाद हो जाएगा, क्योंकि प्रेस जब विज्ञापन की तरफ मजबूर हो जाता है तो जो विज्ञापन देने वाले हैं वो भी अपना किराया लेते हैं. कहता है तुम मेरे खिलाफ तो ज्यादा नहीं लिख पाओगे, मुझसे एडवर्टाइजमेंट भी लोगे और मेरे खिलाफ भी लिखोगे, ये तो नहीं हो पाएगा. तो जो रियल एस्टेट के बड़े बड़े इश्तिहार आते हैं, बड़े बड़े टावर्स बन रहे हैं एक्सप्रेसवे में, अब वो फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट देता है, लेकिन निवेशकों को लूट गई है. अब आप निवेशकों के पक्ष में लिखेंगे, उसके खिलाफ लिखेंगे तो वो कहेगा फिर तो एडवर्टाइजमेंट मैं ना दूंगा, है ना. तो वो समझौता मजबूरी है. क्या मैं और आप, कम से कम जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम क्या अखबार को 20 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है? ये हमें सोचना है. वो भी एक चुनौती है. मैं मानता हूं कि एक और चुनौती जो है, क्योंकि कुछ आप लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए भी रखना है तो बहुत विस्तृत तरीके से आई डोंट वांट टू गो, बट आई बिलीव दैट अनदर मेजर चैलेंज इज दैट हम मीडिया में रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं करते. वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन रिसर्च. आज रिसर्च के नाम पर हम सब एक बाबा के सामने अधीन हो गए, और वो बाबा है गूगल बाबा. सब नतमस्तक होकर खड़े हैं. गूगल में सर्च वर्ड डाल दो, उसमें से जो निकलता है वो सनातन सत्य है. दैट इज द एटर्नल ट्रूथ. जबकि उसमें कूड़ा भरा हुआ है. इंटरनेट में अच्छी चीजें भी है, लेकिन कूड़ा भी काफी हद तक भरा हुआ है. आप वेरीफाई कैसे करेंगे? क्योंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया है. वी हैव स्टॉप्ड रीडिंग. एंड बिलीव मी, एज फ्यूचर जर्नलिस्ट, माय ओनली एडवाइस टू यू इज दैट, जो उसमें कहा था ना विद्या बालन ने, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो मैं कहता हूं रीड रीड रीड. आप पढ़ो. आज मीडिया का सबसे बड़ा क्राइसिस मेरे हिसाब से है कि हम पढ़े बगैर लिख रहे हैं और सुने बगैर बोल रहे हैं. आपने देखा है ना, एंकर सुनता नहीं है, खुद ही बोलता रहता है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहता. हम सुन नहीं रहे हैं. पहला एक टाइम था हम लोगों के पास बैठते थे, बड़े बड़े लोगों के साथ, उनके अनुभव हम सुनते थे. आज हम कहते हैं क्यों बोल कर रहा है, काम की बात बोलना और निकल. जबकि उन अनुभवों में बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो वो 1947 से उनकी गाड़ी शुरू होती है. हम कहते हैं यार 1947 2017 में पहुंच गए, ये तो बोर करके मार देगा.
अभी 47 में गाड़ी रुकी है, अब ये 52 पहुंच गई है, यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वो 47 से 17 तक की यात्रा आप सुनेंगे, आपको पूरा समाज में क्या परिवर्तन आया है, देश में क्या परिवर्तन आया है, ये आपको सुनने को मिलेगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is very important to understand that when we sit with our grandparents, when we sit with senior citizens in our neighborhood, they will tell you stories. The problem is that today's children are no more getting stories. हमारे तो दादा दादी सुनाया करते, तो आज तो दादा दादी ही नहीं है, हम तो अलग रहते हैं उनसे, तो साल में एक बार कभी मिलने को मिलता है हमको। We have stopped interacting with दादा दादीज, their stories, their experiences. That is what contributes to the making of the complete personality in us. वो हिस्सा हमने छोड़ दिया है, हम सिर्फ आज का अभी का सुनना चाहते हैं। We are living in today and now. We don't want to know about yesterday at all. It is like a building without a foundation. There is no foundation. We don't want a foundation. We are erecting our structure, edifice on quicksand. Where are the roots? उस चीज को समझने की जरूरत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लिखने का रियाज करिए, प्रैक्टिस करिए। That is very important. आज मीडिया में क्या हो रहा है कि one research has been replaced by Google search. As a result, there is no in-depth reporting. हम किसी भी मामले को सतही लेवल पर देख रहे हैं, shallow level. Nobody is going deep. Nobody is going deep. And as a result, understanding नहीं है. There is this famous story in television industry when television had just started. हम लोगों को पार्लियामेंट देखने का नसीब हुआ 20 साल मीडिया में काम करने के बाद। पुलिस हेडक्वार्टर, एमसीडी, यहां से लेकर फिर दिल्ली सरकार, फिर जाके हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ बढ़कर जो है मंत्रालय, फिर जाके पार्लियामेंट के करीब। आज क्या है कि आप मीडिया स्कूल से निकले नहीं, माइक पकड़ा दिया और आप पहुंच गए पार्लियामेंट में। एक बड़ा मशहूर किस्सा है, शुरू में टेलीविजन का जब शुरुआत होता है, ऐसे ही किसी बच्चे को मीडिया स्कूल से निकले नहीं, हाथ में माइक पकड़ा दिया और पहुंचा दिया वहां। और ये कोई लतीफा नहीं है, ये हकीकत में हुआ था। तो ये एक उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है पार्लियामेंट की सीढ़ियां उतर के नीचे को आ रहे हैं, तो सारे लेके माइक लेके पहुंच गए, तो सामने रख दिया। वही सवाल आपको क्या महसूस होता है? वही वाला एक सवाल उनके सामने माइक खड़ा कर दिया। अब उन्होंने कुछ बोला और उसके बाद वो निकल गए। तो ये बच्ची जो है, ये माइक लेके उसने कह दिया कि यार बात तो इन्होंने कर ली, लेकिन है कौन? लेकिन अगर मैंने किसी और माइक वाले से पूछ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सीधे इनसे ही पूछ लेती हूँ। तो कार की तरफ जा ही रहे थे, पीछे पीछे सर 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 कहते कि यस। तो कहा कि सर इफ यू डोंट माइंड, मे नो योर नेम प्लीज। तो उन्होंने अपने अलग ही अंदाज में वो बात करते थे। उन्होंने कहा, यंग लेडी, माय नेम इज इंद्रजीत गुप्ता, आई हैपन टू बी द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। I mean, you do not know who is the home minister of your country, and you are in media, you are out there to cover parliament. That is why we say that read, watch, listen to radio. मैं भाषाई पत्रकारिता पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? मैं समझता हूँ कि अगर आप अंग्रेजी पत्रकारिता भी करना चाहते हैं तो जरूर हिंदी के अखबार पढ़िए। भाषाई पत्रकारिता में जितना गहराई है, जितना मुद्दों की समझ है, जमीन से जुड़े मुद्दों की, उतना आपको इंग्लिश जर्नलिज्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जिंदगी भर इंग्लिश जर्नलिज्म में काम किया है। उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूं, आज भी मेरे पास 10 अखबार आते हैं, लेकिन उसमें से 2 हिंदी के होते हैं। मैं जरूर पढ़ता हूं। आई मेक इट ए पॉइंट टू गो थ्रू रीजनल लैंग्वेज मीडिया। Language media is very important because they deal with the people at the grassroots level. They don't live in intellectual ivory towers. So it's very important that so it is very important this research aspect has to be there, and there has to be more investment. There has to be more investment in field reporting. Field reporting हम खो चुके हैं। आज 6 बज जाता है, मल्टीपल विंडो खुल जाता है, 12 लोग बैठे हैं, सब एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, बीच में एक एंकर बैठा हुआ है, चिल्ला रहा है,
वो एक ही आवाज सुनाई देती है, दिस नेशन वांट्स टू नो। और आज उन्हीं का नकल सब कर रहे हैं, हर चैनल में सब नकल कर रहे हैं सब। जबकि एंकर के बारे में बोला जाता है कि एंकर वो व्यक्ति होना चाहिए जिसको सबसे कम बोलना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए बाकी सबको। क्योंकि जब आप एक डिस्कशन कर रहे हैं तो यू हैव इनवाइटेड पीपल टू लिसन टू वेरियस व्यू पॉइंट्स, बट यू गेट टू लिसन टू ओनली द व्यू पॉइंट ऑफ द एंकर, द रेस्ट इज शोरगुल, वन शाउटिंग ओवर अनदर। दैट इज नॉट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म जमीन पे है। I have been a field reporter for 3 decades. दुनिया का सबसे मुश्किल इलाकों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, कश्मीर, गुजरात, कहां कहां मैं नहीं गया हूं। बाढ़ हुआ हो, दंगे हुए हो, तूफान हुआ हो, जंग हुआ हो, हर जगह मैं पहुंचा। क्योंकि वहां जाकर जो मैंने सीखा, वहां जाकर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, वो मैं दिल्ली में बैठकर अपना एयर कंडीशन रूम में बैठ के कंप्यूटर में मैंने डेस्कटॉप रिपोर्टिंग नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज क्या है, आज कई यंग रिपोर्टर्स मुझे भी फोन करते हैं, कहते हैं कि सर सुना है कि आपके यहाँ वो हो रहा है। मैं कहता हूँ आओ ना, एक कप चाय पीते हैं। कहते सर फोन पे बता दीजिए ना, क्योंकि बाहर निकलने में गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी। जिस दिन आप ठंड और गर्मी से डर गए, आप अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते। आपको निकलना पड़ेगा, उसका मजा कुछ और है। वरना मैं अक्सर कहता हूं, मेरा रंग ये थोड़ी था, मैं तो बहुत गोरा हुआ था। आपको सारे बारिश, धूप, हर चीज का सामना करना पड़ेगा। उसका अलग एक्साइटमेंट। You are there witnessing the unfolding of history before your eyes. आंखों के सामने आपका इतिहास, जो 50 साल बाद इतिहास बनेगा, जो किताबों में पढ़ाए जाएंगे, वो आपके सामने हो रहा है। उसका मजा ही कुछ नहीं है। You are part of the making of history. So don't be potato, जो कहते हैं couch potatoes, है ना, कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं, मैं बाहर नहीं, है ना। ये जरूरी है। मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है। वो जमाना जब मुझे याद है कि मैंने संपादक के नाम पत्र, लेटर्स टू द एडिटर, उसको भी LTT कहते हैं, लेटर्स टू द एडिटर, वो मैं लिखता था और इंतजार करता था कि कल छपेगा, आज छपेगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे राय भी छपे। आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है न्यू मीडिया के रहते कि मैं अपना ब्लॉग लिख सकता हूं और पूरी दुनिया को बता सकता हूं कि मेरा इस विषय पर क्या राय है। इसलिए आप लोग अपने राय को, वो ऐसे ही राय मत लिखिए, कहीं से सुन लिया। आप पत्रकार हैं, यू आर द फ्यूचर जर्नलिस्ट, सो योर बिहेवियर ऑन सोशल मीडिया शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ अदर स्टूडेंट्स और other citizens. You are aware citizens. You are enlightened citizens. इसलिए वो शब्द का मैं प्रयोग करता हूं, responsible social media behavior. अक्सर हम कोई भी लिंक को, कोई भी पोस्ट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं क्योंकि मेरे दोस्त ने या सहेली ने डाला है। एक बार मैंने देखा एक बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो को एक मेरे जानकार में एक मित्र ने शेयर किया है। मैं जानता हूं कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। मैंने तुरंत उसे फोन किया, मैंने कहा तुमने ये कैसे शेयर कर लिया? तो उन्होंने कहा कौन सा? मैंने कहा तुमने शेयर किया, तुम्हें याद नहीं है? कह दिया कि नहीं मुझे याद नहीं है, मैंने देखा नहीं था, मेरे दोस्त ने पोस्ट किया था इसलिए मैंने शेयर किया। आप जानते हैं कि जब आप शेयर करते हैं तो एक साथ वो 5000 लोगों के साथ पास चला जाता है। आप वायरल कर रहे हैं एक ऐसे चीज को सिर्फ इसलिए आप किसी के पोस्ट को लाइक या शेयर करते हैं क्योंकि आपका दोस्त आपके पोस्ट को लाइक और शेयर, लेकिन उसने क्या शेयर किया है, कंटेंट क्या है, इसको देखने की जरूरत है। तो इट कॉल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर। फ्रेंड्स, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, but I can only tell you one thing, that the future is bright
there is no doubt about it. But don't take your profession lightly. It comes with a lot of responsibility. It comes with a lot of power. It comes with a lot of responsibility from the society, towards the society. People have a lot of expectations from you, and I am sure that today I am addressing some of the finest future journalists of India, and my best wishes to all of you. God bless you. On an interesting journey by highlighting the various opportunities and challenges faced by the Indian media. Now the house is open for question and answers. Students who have questions, please raise your hands. Okay. Can we have a mic at the last, please? Can a student please help Sanchita ma'am? Please tell your name and your semester. I'm Purvi and I'm from first semester EJMC. A very good afternoon, sir. And my question is, like as a journalist, as a future journalist, if I wish to report something against an eminent personality, like a known person, how do I present it? Yes. Nobody stops you from writing against anybody. But I believe, and we all, the cardinal principle of journalism is that it should be evidence-based. You cannot make wild allegations against any individual or institution unless it is supported by evidence. Otherwise, it becomes your views, not news. You should not mix news with views. News, there are sacred, there are opinion pieces, the editorial pages which are meant for views. But when you are talking, making an allegation against somebody, those allegations should be substantiated by facts, documents which you have. That is how the fodder scam, the Beaufort scam, these were not just, it did not come out like that. It were, these investigations were backed by, a lot of evidence. So first you have to gather evidence. Without evidence, you cannot, howsoever mighty it might be. You have seen during the last regime, there were so many Commonwealth, 2G, 3G, all kinds of scams were there. But the media brought it to light on the basis of evidence. You cannot go by hearsay or rumor or gossip. Unless it is substantiated by facts, you cannot make allegations, right? Thank you, Purvi. Thank you, sir. Next question, please. Okay, we have a question here. Itika. And a question there also. Itika, can you please wait? We can have the question there. Myself, PGMC, semester first PGMC student. Good afternoon, sir. सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या आज का मीडिया सिर्फ हादसा होने के बाद की कवरेज करने के लिए रह गया है? क्योंकि सर जैसा कि हमने अभी रिसेंटली टॉपिक देखा, बाबा राम रहीम, बाबा कहने में भी शर्म आती है इस तरीके से वो उनके हमारे एक छोटा सा केस, छोटा सा बड़ा सा जो भी है, 15 साल लग गए खुलने में। जैसे ही सीबीआई ने अपने आदेश दिए या जो भी उसके जांच करने के लिए बोला, सारा मीडिया पहुंच जाता है बाबा राम रहीम के चीजों को खोलने के लिए कि वो ये करते थे, वो करते थे, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ये सब था। तो क्या अगर मीडिया ने 15 साल लगे उसे खोलने में, अगर पहले उसकी कवरेज करने में हेल्प की होती सीबीआई की, तो 15 साल इतने इस केस को खोलने में नहीं लगते। तो सिर्फ हादसे के बाद रेल एक्सीडेंट, गोरखपुर कांड, बस मीडिया उनकी बाद में कवरेज करता है उसके होने के बाद। अगर उसको पहले करे तो सबको सपोर्ट होगा उसको जल्दी खोलने में। पुराने फिल्मों में आपने देखा होगा विलेन के पिटने के बाद ही पुलिस आती है। तो खैर
ऐसी बात नहीं है कि हर केस में ऐसा है, मीडिया ने भी काफ़ी करप्शन के केसेस को एक्सपोज किया है, लेकिन कुछ केसेस में देखिए उसके कई कारण हैं, मैं उसको ठीक नहीं ठहरा रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ मजबूरियां भी हैं। एक होता है कि जब तक आदमी को कन्विक्ट नहीं किया जाता है तो आप अगर उस पर एलिगेशन लगाएंगे तो ये डर लगा रहता है जब तक सबूत कोई भी उनके खिलाफ सामने आके बोलने के लिए, आज तो लोग तैयार हो गए तब कोई तैयार नहीं हुआ, तो मैंने वही एविडेंस बेस्ड की बात कही। आप अगर तो आपके ऊपर डिफेमेशन लग सकता है, आपके ऊपर मानहानि का दावा लग सकता है करोड़ों रुपए, तो मीडिया वाले भी थोड़ा। और दूसरा, आपने खुद देखा कि सिर्फ एक कन्विक्शन होने पर कितना वायलेंस है, तो कहीं ना कहीं अंदर एक डर होता है कि इनके समर्थक आके हमारे दफ्तर को जला देंगे, हमारे उसको जला देंगे, ये भी एक डर रहता है। और तीसरा, आपने भी देखा है कि कभी कभी हम सिर्फ वो कमर्शियल रीजन की वजह से समझौता कर रहे हैं। हमने पहले चैनलों में देखा है, आज भी वो चलते हैं, बाद में हमने उनको एक्सपोज, तो उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। वो आपको याद होगा, मैं नाम वाम नहीं लूंगा, किसी ने कहा था कि कौन से रंग के जुराबे पहन रखी है, मुझे समोसे की खुशबू क्यों आ रही है। तो ऐसे लोगों को भी हमने बहुत मीडिया में हमने दिखाया है, लेकिन बाद में हमें कई चीजें पता चला। तो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूँ, मेरा कम से कम मानना है कि जहाँ गलत होता है वहाँ मीडिया को उठकर मेहनत करनी पड़ेगी, सबूत निकालने होंगे। कोर्ट के आने के बाद अब वो अंदर हो गए तो अब कई कहानियां उनके निकाल के रहस्यमय गुफा पता नहीं क्या क्या निकल के आता है। ये पहले आता तो बेहतर होता, इससे बहुत जल्दी न्याय मिल जाता। लेकिन आपने ये भी देखा कि चंडीगढ़ में अभी जो हाल ही में जो छेड़खानी की घटना हुई, उसमें एक बहुत ही प्रभावी व्यक्ति के पुत्र ने जो है छेड़खानी किया था, लेकिन मीडिया ने क्योंकि उस मुद्दे को उजागर किया तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार हुआ। तो मीडिया ने किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में मीडिया चूक जाती है ना, लेकिन ऐसा चूकना नहीं चाहिए। Good afternoon, sir. I am Deepika, PGMC third year. My question to you is it good to be empathetic as a journalist at every aspect of journalism? Empathetic to whom? To every individual, or the whichever case we are following. No, you have to, आप तो उसके वजह पर जाने, किस वजह से। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक छोटा सा किस्सा है। आपने देखा कुडनकुलम में एक प्रोजेक्ट, आप लोगों ने पता नहीं याद है या नहीं, कुछ साल पहले कुडनकुलम एक जगह है तमिलनाडु में, वहां एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्थापित हो रहा है। उसके खिलाफ कई मछुआरों ने, कई लोगों ने सामने आए। तो हो सकता है कि अगर आप फेस वैल्यू पे, इसलिए मैंने कहा कोई भी चीज ऐसे मीडिया पर्सन फेस वैल्यू पे मत ले, तो लोग लगेंगे अरे इन मछुआरों के साथ अन्याय हो रहा है, वहां प्रोजेक्ट आ रहा है, कई चीजें। बाद में पता चला जब इन्वेस्टिगेशन हुआ कि वो जो कुडनकुलम जो प्रोजेक्ट जिसके खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा निकाला जा रहा था तथाकथित गरीब और गांव वालों से वगैरह, पता चला कि उसके पीछे, क्योंकि वो रूस वो प्रोजेक्ट बना रहा था, तो रूस के खिलाफ जो ताकतें दुनिया में हैं वो उस पूरे विरोध प्रदर्शन को फंडिंग कर रहे हैं। तो गरीब लोगों को बरगलाया जा रहा था कि देखिए ये आपके हित में नहीं है, और उनको तैयार करके, क्योंकि कुछ लोग इस बात से खुश नहीं थे कि रूस उस प्रोजेक्ट को कर रहा है, तो रूस के प्रोजेक्ट को कैसे रोका जाए। इसलिए जो सामने दिखता है उस पर मत जाइए। एम्पैथी पूरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू के बाद। कभी कभी मैं अपने अनुभव का एक और बात बता के बात को रखता हूं। मैं बीच में बहुत कई दशक पहले खबर फैली थी कि ताजमहल पीला हुआ है, और मैंने उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आगरा गया। तो वहाँ का बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ एक लेदर की इंडस्ट्री है, टैनरी बहुत है उस टाइम। तो उन्होंने कह दिया कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए एक एंटी पोल्यूशन डिवाइस लगाने की जरूरत है, और जबरदस्त कैंपेन चल रहा था कि एंटी पोल्यूशन डिवाइस लगा। और मैंने वहां जाके पता किया, जब मैं एक एक टैनरी यूनिट में गया और मैंने पता किया, तो पता चला
पोल्यूशन तो सच्चाई है, लेकिन जिस तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था, उसके पीछे का कारण जाना तो देखा कि एक एंटी पोल्यूशन डिवाइस बनाने वाला एक अमेरिकन कंपनी, उसको अपना एंटी पोल्यूशन डिवाइस बेचना था। क्योंकि उसको हर यूनिट में वो बेचना था, इसलिए उसने एक माहौल बना दिया कि देखिए अगर ये जब तक नहीं लगाएंगे तब तक टैनरी चल नहीं पाएंगे, और टैनरी की वजह से ये पूरा पीलापन आ रहा है। ऐसा एक माहौल खड़ा कर दिया। ये माहौल कभी कभी बनता नहीं है, बनाया जाता है। कुछ माहौल आपको लगेगा अरे पब्लिक नाराज हो रही है, पब्लिक नाराज नहीं थी, उनको भटकाया गया। तो ये आपको तह तक पहुंचना है। इसलिए मैंने कहा जो सामने दिखता है उस पर मत भरोसा कीजिए। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो उसके तह तक जाइए कि इसके पीछे क्या है, कहानी के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश कीजिए, तब आप बेहतर पत्रकार बनेंगे। Now I would like to bring this occasion to a formal conclusion by extending a vote of thanks. I, on the behalf of entire DME family, wholeheartedly express our gratitude, sir, for your valuable time and giving us the in-depth knowledge about the field of journalism. A special thanks to our advisory board member, Dr. Amrish Saxena, sir, for continuously finding innovative ways to help our students. A special mention to Professor Naresh Behl and Professor Adar Chillar. Last but not the least, special thanks to the societies of DME, DME Frames, DME TV, DME Radio. A big thank you to all my students for enthusiastically participating and my all faculty colleagues for managing the event. Thank you so much once again. Can we all please stand up for the national anthem? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जा